اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز میڈیا پرسنلٹیز، آج یُس زن ییٚتہِ اَسہِ تُہۍ بُلٲیِو، اَسہِ دیُت تۄہہِ دعوت، اَسہِ دیُت تۄہہِ تکلیٖف. مقصد چھُ پارٹی ہٕنٛدِ طرفہٕ چھُ آمُت مینڈیٹ دِنہٕ اقبال ترٛمبو صٲبس، یُس زن پارٹی ہُنٛد لیڈر چھُ، تہٕ بیٚیہِ چھُ اَسہِ کانسٹچوینسی انچارج چھانپورہ کانسٹچوینسی، ایکس لال چوک کانسٹچوینسی. سۭتۍ چھِ صدر ضلع سری نگر جناب عبدالقیوم بٹ صٲب، سٹیٹ سیکرٹری سینئر سٹیٹ سیکرٹری عبدالحمید کوشین صٲب، پارٹی ہٕنٛدۍ یوٗتھ لیڈر تہٕ کانسٹچوینسی انچارج حبق عدل جناب عارف لائے گرو صٲب، بیٚیہِ چھُ کانسٹچوینسی انچارج تہٕ سیٖنیر لیڈر پارٹی ہٕنٛدۍ کانسٹچوینسی انچارج کیٛاہ چھِ وَنان یَس یہِ عیٖدگاہ ڈاکٹر علی محمد صٲب، تہٕ بیٚیہِ چھِ زون پریزیڈنٹ اَسہِ سارنٕے 8 کانسٹچوینسین ہٕنٛز ییٚتہِ. مقصد چھُ ییٚتہِ چھِ پریس کانفرنس چھُ صرف یہِ یُس زن سری نگرس منٛز سری نگر میونسپلٹی ہٕنٛدِ حوالہٕ لُکن ہٕنٛدٮ۪ن مسٲیلن سۭتۍ گِنٛدنہٕ چھُ یِوان پنٕنٮ۪ن ذٲتی مقاصدن تہٕ مفاداتن ہٕنٛدِ خٲطرٕ. تمہِ خٲطرٕ چھِ أسۍ یژھان تۄہہِ برونٛٹھ کنہِ سُہ احتجاج درج کرُن، تاکہِ یِم زن لُکن ہٕنٛدۍ مسٲیل چھِ، مُشکلات چھِ، تِمن ہُنٛد حل کڑنہٕ خٲطرٕ کرِ اکھ یہِ پی ڈی پی اکھ مُہم اکھ گیرو، یُس زن أسۍ تِم ہُشار کروکھ یِمو زن ییٚتہِ سری نگرُک حال بُرٕ چھُ کوٚرمُت، یِمو زن سری نگر سٹی ہٕنٛدۍ مسٲیل، عوٲمی مسٲیل، چاہے سڑک چھِ، چاہے ہیلتھ چھُ، چاہے آب چھُ، یا کانٛہہ مسئلہٕ یِم تہِ ذٲتی بُنیٲدی مسٲیل چھِ تِم چھِ نظر انداز آمٕتۍ کرنہٕ. تہٕ بہٕ کرٕ گُزٲرِش اقبال ترٛمبو صٲبس تِم کرن پنٕنۍ یِم مسٲیل تۄہہِ برونٛٹھ کنہِ پیش، پتہٕ گژھن سوال جواب، تہٕ یتھ زن بیٚیہِ کرن تِم انٹرڈیوٗس پنٕنٮ۪ن 8 کانسٹچوینسیو پٮ۪ٹھ کُس کُس نفر چھُ اَسہِ ییٚتٮ۪ن تِم تہِ کرن. السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اَسہِ چھِ ییٚتٮ۪تھ موٗجوٗد حظ سٹیٹ سیکرٹری کوشن صٲب، ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ سری نگر ہمارے عبدالقیوم صاحب، ہمارے میڈیا کوآرڈینیٹر سے تو آپ بشیر صاحب سے ملے ابھی. ہمارے یہاں بیٹھے ہیں انچارج عیدگاہ کانسٹیچوئنسی ڈاکٹر علی محمد صاحب، انچارج حبق عدل کانسٹیچوئنسی ہمارے عارف لائے گرو صاحب بیٹھے ہیں، زون پریزیڈنٹ خانیار ہمارے محمد شفیع کندنگر صاحب بیٹھے ہیں، زون پریزیڈنٹ شالٹینگ بشیر احمد بٹ صاحب بیٹھے ہیں، زون پریزیڈنٹ لال چوک بلال صاحب بیٹھے ہیں، اور زون پریزیڈنٹ حبق عدل سمیر صاحب. یہ ہمارے 8 جو سری نگر کانسٹیچوئنسیز ہیں ان کے انچارجز اور ریپرزینٹیٹیوز ہیں. ان کا یہاں بیٹھنے کا خاص مقصد ہے کیونکہ ان کو اپنے علاقے میں اپنے اپنے لوگوں کی پریشانیوں کا ایک اندازہ ہے، تو اسی لیے یہ ہمارے ساتھ اس وقت بیٹھے. آج ہم یہاں پر آرٹیکل 370 یا 35A کی بات کرنے نہیں بیٹھے ہیں، جس پر ہماری پارٹی کا سٹینڈ بہت واضح ہے اور کلیئر ہے، اور جس سے سارے جموں کشمیر کے جو لوگ ہیں ان کے دل مجروح ہوئے ہیں، اور بالخصوص شہر سری نگر کے لوگوں کے دل مجروح ہوئے ہیں. ہماری پارٹی وعدہ بند ہے کہ جو ہم سے اگست 5 2019 کو چھینا گیا، ہم انشاءاللہ اس کے لیے جدوجہد کریں گے، اور جو ہم سے لیا گیا ہے انشاءاللہ ہم اسے واپس لانے کی کوشش کریں گے اور واپس لائیں گے. لیکن آج مدعا یہ نہیں، آج مدعا ہمارے شہر خاص ان 8 کانسٹیچوئنسی کی پبلک کی فلاح اور بہبود کا سوال ہے. پچھلے 10 15 20 روز سے ہم لگاتار سوشل میڈیا پر، ٹی وی چینلز پر کارپوریٹرز کی ایک بحث، پریس کانفرنس ہر روز دیکھ رہے ہیں، جس میں ایک دوسرے پہ طنز کشی، الزام تراشی، سلینڈرنگ، مڈ سلنگنگ یہ مسلسل چلی آ رہی ہے. ہمیں بہت افسوس ہے اس بات کا کہ جس چیز کے لیے ہمارے کارپوریٹ صاحبان، ہمارے وردی کارپوریٹرز جس مقصد کے لیے چنے گئے ہیں، جس مقصد کے لیے وہ اس میونسپل کارپوریشن میں
عہدے संभाले हुए हैं वो इन चीजों में मुलवस है जिन चीजों से बिलआखिर अगर कोई सफर करता है तो शहर खास के लोग सफर करते हैं। उनका काम और उनकी जिम्मेदारी यही थी कि वो शहर खास के लोगों की परेशानियों का इजाला करे, लेकिन हो ये रहा है वो एक दूसरे की इल्जाम तराशी में सारा वक्त गुजार रहे हैं और जितना भी पैसा, जो भी पैसा लोगों की फलाह बहबूद के लिए आ रहा है या आया है, वो इस मामले की वजह से वहां खर्च नहीं किया जा रहा है जिससे लोगों का फायदा हो। उनका कहना है, मेरा कहना नहीं है। इन प्रेस कॉन्फ्रेंसों में वर्दी कॉरपोरेटर्स का कहना है कि मैग्नेमाइजेशन पर 38 करोड़ रुपया आया है। ये 38 करोड़ रुपया शहर श्रीनगर की 8 कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लिए आया है, लेकिन ये सारा पैसा बकौले उनके सिर्फ 2 कॉन्स्टिट्यूएंसियों में खर्च हुआ। बाकी जो 6 कॉन्स्टिट्यूएंसियां हैं और जो वहां के लोग हैं, क्या उनको ये हक नहीं है कि उनको अच्छी सड़क चलने को मिले? क्या उनको इस हक से मुस्तफी किया जा रहा है? इसकी वजह क्या है? दूसरा इल्जाम जो लगा रहे हैं कि करोड़ों रुपया इनके अकाउंटों में जा रहा है, करप्शन का इल्जाम दिया जा रहा है। करप्शन में अगर मुलवस हमारे कॉरपोरेटर हैं तो यकीनन फिर लोगों का काम कहां हो रहा है? स्टेट लैंड की बात कर रहे हैं कि स्टेट लैंड पर बिल्डिंग्स बन रही हैं, तो ये शहर खास के लोगों के साथ नाइंसाफी है। डल में मैग्नेमाइजेशन हो रही है, उस डल में मैग्नेमाइजेशन हो रही है जिस डल के लिए करोड़ों और अरबों रुपया सरकार प्रिजर्वेशन के लिए खर्च कर रही है, जिस डल के लिए हाई कोर्ट ने कितने ऑर्डर पास किए हैं कि ये ग्रीन एरिया मेंटेन हो। जब आप वहां मैग्नेमाइजेशन करते हैं तो यकीनन इससे क्या होगा? इससे गाड़ियों की आमदरफ्त बढ़ेगी और मटेरियल का आना जाना आसान हो जाएगा। रिजल्ट कंस्ट्रक्शंस, बिल्डिंगें बनेंगी, क्योंकि जब से हाई कोर्ट ने इसमें इंटरफेयर किया है तब से हमें नहीं लगता है कि बिल्डिंग्स के बनने में कोई कमी आई है, मगर अगर देखा जाए तो और बिल्डिंग्स बनी है, तो शहर तो बर्बाद हो रहा है। मदा और मकसद हमारी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये है कि लोगों ने इन कॉरपोरेटर साहिबान को चुना है, वोट दिया है, इन पर एतमाद किया है और इन्होंने इन प्रेस कॉन्फ्रेंसों की वजह से लोगों को और हम सब को ये तासुर दिया है कि ये श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो है एक करप्शन का गढ़ है। यहां पर लूट खसूट है, यहां पर अवामी काम नहीं हो रहे हैं। इन्होंने इन प्रेस कॉन्फ्रेंसों और इन एक्विजिशंस और इन स्लैंडरिंग की वजह से इस एक कॉरपोरेशन को, जो एक डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है, इसकी सैंक्टिटी, इसके तकद्दुस को खत्म किया है। डेमोक्रेसी पर लोगों का यकीन उठाने के बराबर ये काम है। लोग क्या सोच रहे होंगे इस वक्त, शहर खास के लोग, हमारे श्रीनगर, कश्मीर के लोग, जम्मू के लोग, बल्कि सारे मुल्क के लोग क्या सोच रहे होंगे? क्या यही हमारे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस, क्या यही काम ये कर रहे हैं इस कॉरपोरेशन में बैठ के, जिसकी जिम्मेदारी शहर खास के लोगों की फलाह व बहबूद है? वो लोग, वो शहर खास के लोग जो कितने सालों से परेशान हैं, जिनके पास बेसिक फैसिलिटीज नहीं है, जिनके पास कुछ भी नहीं है, उनके लिए इनको काम करना है। लेकिन ये किन कामों में लगे? देखिए, करप्शन है, किसी ने धांधली की है, किसी ने गलती की है, इसके लिए एजेंसीज है, इसके लिए गवर्नमेंट में बाकायदा डिपार्टमेंट्स है, वो इन चीजों का प्रूव कर सकते हैं, वो इन चीजों में तहकीकात कर सकते हैं और जिसने जो जुर्म किया हो उसके साथ कानून वैसा ही सलूक करेगा। इसमें पब्लिक डोमेन पे आने की जरूरत नहीं है। अपना काम न करने छोड़कर एक दूसरे की खिलाफ वर्जी, एक दूसरे पर तंजकशी, इससे क्या हासिल होगा? लोग, मैं इन वर्दी कॉरपोरेटर्स, हम इनकी इज्जत करते हैं, ये लोगों के चुने हुए कॉरपोरेटर्स हैं और पढ़े लिखे लोग हैं और सब, हर कोई कॉरपोरेटर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कह रहा है कि हम शहर की बका चाहते हैं। अगर ये शहर की बका चाहते हैं तो फिर ये क्या कर रहे हैं? ये अपना वक्त किस में सर्फ कर रहे हैं? ये तो एक दूसरे को खरीदो फरोख्त की बात कर रहे हैं। ये कॉरपोरेशन जो है एक कॉरपोरेट ऑफिस जैसा बन गया है। तासुर तो यही मिलता है इन प्रेस कॉन्फ्रेंस से। ये एक कॉरपोरेट ऑफिस बन गया है जिसमें लाखों करोड़ों रुपया खर्च किया जाता है कॉरपोरेटर्स को फरोख्त करने में और पोस्ट
पोस्ट बनाने में, हेड करने में, ये तो एक कॉर्पोरेट ऑफिस है, कॉर्पोरेशन नहीं है। तो हमारी इस्तदा है, मोदबाना गुजारिश है तमाम कॉर्पोरेटर हजरात से कि मेहरबानी करके जिस काम के लिए आपको चुना गया है, जो आपका काम है, उस पर तवज्जो दे, वरना वो दिन दूर नहीं जब शहर खास के लोग, आपको याद होगा रिसेंटली हमारा एक यहाँ यूथ कन्वेंशन हुआ, उसमें सबसे ज्यादा यूथ की अगर डिमांड थी, शहर खास के यूथ की डिमांड थी कि हमारे शहर का हाल देखिए, हमारे शहर की पोजीशन देखिए। गर्ज उनकी तवक्कात इस श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन पर है। मैं आपको वसूख के साथ कह सकता हूँ और इन कॉरपोरेटर हजरात को भी मोदबाना गुजारिश करता हूँ कि अगर वो अपना रवैया ठीक नहीं करेंगे, अगर वो अपना काम नहीं करेंगे, वो दिन दूर नहीं होगा। जिन लोगों ने उनको वोट दे के चुना है, वही लोग उनके खिलाफ धरना करेंगे और उनको अपने ओहदों से मुस्तफी होने की मांग करेंगे, और उस वक्त हम भी उन लोगों के साथ होंगे, क्योंकि हमारा भी मकसद कि शहर खास के लोगों की जो है उनकी फलाह, बहबूद, बका और तरक्की के लिए काम हो। मैं आपको एक छोटी मिसाल दूंगा। यहाँ पर हमने इसी सोशल मीडिया पर डेमोलिशंस देखे। वैसे तो मैं आमतौर पर गरीब के मकान ही देखता हूँ जो डेमोलिश होते हैं, अमीर का मकान मैंने ऐसे खास तौर पर नहीं देखा। मगर मेरा एक सवाल है, ये मकान, ये बिल्डिंग, ये एक रात में नहीं बनता है, ये 2 दिन में नहीं बनता है, इसमें सालों लगते हैं। क्या होता कि हमारे श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कॉरपोरेटर्स, ओहदेदारान, वार्ड ऑफिसर्स, वो विजिलेंट रहते, वो ये देखते कि कोई गैर कानूनी कंस्ट्रक्शन तो नहीं हो रही है, वो इसको बनने से ही रोकते। एक तो उस शख्स से कोई गैर कानूनी काम नहीं होता, दूसरा जो पैसा वो उस बिल्डिंग पर लगाता है और बिल आखिर उसको डिमोलिश किया जाता है, उसका नुकसान भी होता है। मेरी तो अपील है गवर्नमेंट से, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से, कि अगर कहीं डिमोलिशन होती है, जहां भी डिमोलिशन होती है, पहले उस वार्ड के अफसरों को पूछा जाए, पहले उनको सस्पेंड किया जाए जिन वार्डों में ये इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रही है। आखिर वजह क्या है? 4 साल 2 साल इस कंस्ट्रक्शन में लगते हैं। इतनी देर ये कॉरपोरेशन के एहलकार, ये कॉरपोरेटर हजरात क्या करते हैं? ये इसको क्यों बनने देते हैं? और बिल आखिर जहां पर बात नहीं बनती है वहां डिमोलिशन हो जाता है। इस चीज को हमको देखना होगा, इस चीज को हमको तवज्जो देनी होगी। ये हमारे कॉरपोरेट हजरात का काम है कि इस तरह शहर हमारा बर्बाद हो रहा है। हमारे शहर के लोगों में एक एनकरेजमेंट मिलती है इलीगल काम करने के लिए। इस चीज को हमने देखना है, हमारे इंस्टीट्यूशंस को देखना है। तो मैं एक बार फिर आपके जरिए से इन तमाम कॉरपोरेट हजरात को मोदबाना गुजारिश करता हूं कि वो इनहराफ करें इन प्रेस कॉन्फ्रेंसों से, इन चीजों से जिसमें लोगों में बदएतिमादी पैदा होती है, और अपना सारा वक्त इस चीज की तरफ लगाएं कि लोगों को और लोगों के काम हो और लोगों को सहूलियत हो। मुझे इसके अलावा आपसे 2-3 बातें और करनी है। आप देखिए शहर खास के लोग हैं और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसी इंचार्ज है। अब इतना टाइम नहीं ये कि ये सब आपको अपने अपने इलाकों की प्रॉब्लम्स बोले, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स मैं आपको जरूर बताना चाहता हूँ। यहाँ पर इस वक्त चूंकि मौसम सरमा है, विंटर आ गया है, आम शिकायत हमारे लोगों की ये है, आपको तो मालूम है कि स्मार्ट मीटर का ऐसा निफास हो गया है कि हर जगह स्मार्ट मीटर लगाने हैं, चलिए लगाइए। और विंटर में लोड शेडिंग का कंटेनमेंट शेड्यूल भी शाया हो गया है, लेकिन इस पर हमारा बिजली महकमा अमल नहीं कर रहा है। लोड शेडिंग के अलावा बिजली ऐसी आंख मिचोली खेल रही है कि मुश्किल से 2 या 4 घंटे हमारे लोगों को पावर मिलता है। इसमें बिजली डिपार्टमेंट से हमारी गुजारिश है कि वो इस चीज पर देखें और लोड शेडिंग के हिसाब से ही पावर मुहैया करें। दूसरा बड़ा अहम मसला है हमारे लोगों को, जो गरीब लोग हैं जिनकी बिल 500, 800 या 1000 आती है। देखने में आया है कि 10-10 हजार की बिलें आई है। फिर उन सारिफीन को महकमे के पास जाना पड़ता है, फिर वहां पर उनके हाथ पैर जोड़ के वो देखते हैं कि इस बिल में गलती हुई है, फिर वो इस बिल को दुरुस्त करते हैं। ये बहुत बड़ी परेशानी हमारे लोगों के लिए है। पानी की परेशानी हमारे इलाकों में, पीने का पानी दस्तयाब नहीं है, सड़कों की हालत बुरी है, ड्रेनेज सिस्टम का हाल खराब है। गर्ज शहर खास ये 8 कॉन्स्टिट्यूएंसियां पूरी और पूरी बदहाल है इस वक्त। इसकी तरफ न कॉरपोरेशन का ध्यान है
اور نہ ہی ایڈمنسٹریشن کا دھیان ہے. آپ دیکھیے اس شہر، اس کی حالت کیا ہوئی ہے. یہاں پر تقریباً 4 لاکھ گورنمنٹ ملازمین ہیں. آپ کو بولنا چاہتا ہوں، آپ کے ساتھ یہ شیئر کرنا چاہتا ہوں. سارے ملک میں ریاست جموں کشمیر جو تھی اب یونین ٹیریٹری. سر آپ پلیز آپ میری بات ذرا مہربانی کر کے سنیے. ریاست جموں کشمیر میں تقریباً 4.5 لاکھ گورنمنٹ ملازم ہیں اور 4.5 لاکھ گورنمنٹ ملازموں کو سالانہ 40,000 کروڑ کی تنخواہ ملتی ہے. ہمارے اسٹیٹ کا یہ 40% بجٹ ہے. یہ نوکریاں پچھلے گورنمنٹوں کی دین ہے. اتنا ریشو پبلک اور گورنمنٹ امپلائی کا سارے ہندوستان میں کہیں نہیں ہے. یہ نوکریاں پچھلے گورنمنٹوں نے ہم کشمیر کے لوگوں اور جموں کے لوگوں کو دی ہے اور ان کی تنخواہیں اتنی اچھی ہے کہ ان کا مستقبل بھی سیف ہے اور ان کے بچوں کا مستقبل بھی سیف ہے. اگر مستقبل کسی کا سیف نہیں ہے تو کشمیر اور جموں کے عام لوگوں کا مستقبل سیف نہیں ہے. اگر ان 4.5 لاکھ لوگوں کو کوئی کام کرنا ہے تو وہ یہ کام کرنا ہے کہ اگر ہمارا مستقبل، ہمارے بچوں کا مستقبل گورنمنٹ نے سیکیور کیا ہے، ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم کشمیر اور جموں کے عام لوگوں کے بچوں کا مستقبل بھی سیکیور بنائیں.